Good afternoon, friends. Today is the second tranche of announcements towards building a Atmanirbhar Bharat. The slides will go on, but before we start the slides, just want to let you know that today's initiatives, which are getting announced as a part of the second tranche that we are announcing today, focuses on migrant workers, street vendors, small traders, self-employed people, small farmers. And when I say small farmers, there are a few items we say. So in all, about 9 steps that I will be announcing today. 3 relating to migrant workers, 1 related to the Sishu loan within Mudra, 1 related to street vendors, 1 housing, 1 related to employment generation largely for tribals and in those in the tribal pockets, and 2 related to farmers, particularly small farmers. But even as I say this, since you have been keenly listening and hearing what we are saying, many of them may have overlaps with the next package that we'll announce. So on farmers, for example, it's not as if I'm giving only 2 steps, nothing more. Arey kisan ke liye chhod de kaam. No, there will be more. But today I'm bringing in 2. Just as I said, in each of the package, we'll keep in mind and prioritize concerns related to migrant workers, poor, those who are, in need, and therefore that will continue. So if I have not spoken about a certain thing today, it's not as if Government of India has forgotten. After all, let's please remember, within hours of having announced the lockdown, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana was for the poor, was for transferring cash to the poor, was for giving grains for the poor, and so on. And that's not enough. We will come with more. We are announcing more. So let's not look at each one of the silo as though that was the only thing. As I said earlier, there are tranches of announcements. Many things might overlap. Many of them might get mentioned here as well as mentioned once more somewhere else. So just a broad understanding on that. And before I get to talking about what we are doing on the migrants, I just want to let you know that about 3 crore farmers had availed loans which were given to them earlier in concessional rates, I think, which was direct support to farmers. And those 3 crore farmers had availed of agricultural loans which were over 4 lakh crores. 3 crore farmers who are marginal farmers had already benefited from 4 lakh crores of credit given to them. And those people who have availed of these credit through the Reserve Bank were also given a moratorium. For the next 3 months, you don't have to pay your EMI and so on. Now, the interest subvention, which is normally given for prompt repayment in time, was extended till March. Now we are extending it up to 31st May 2020. So that is a thing which was already availed of, and for that we are giving a bit of an extension. And in the last 2 months, 25 lakh new Kisan credit cards have been given, which entails that they can take concessional credit. They're actually marginal farmers. So we've not forgotten them. And those 25 lakh new Kisan credit card holders
have also been given or sanctioned a loan which totals to 25,000 crores. These are recent happenings. So there may have been a lockdown, but the government was not sitting quiet. It has been attending to a lot of those who are in the margins of our society, who are desperately in need of assistance to carry on with their small work. So that is something which I want to draw your attention to before we move on to today's package. धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो मीडिया के अपने मित्रों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत इस संकल्प को, इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। पिछले 2 दिनों में पूरे देश भर में आपने चर्चा को बदला है, एक सकारात्मक सोच खड़ी हुई है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अगर 2014 में भी देखें तो मोदी जी ने अपने सबसे पहले भाषण में यही कहा था कि ये उनकी सरकार वो जो गरीबों के लिए सोचे, जो गरीबों को सुने, गरीबों के लिए जिए, और इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, युवाओं को, महिलाओं को समर्पित है। गांव हो, गरीब हो, पीड़ित हो, वंचित हो, ये सरकार उनके लिए है। हमें गरीब से गरीब आदमी की मदद करनी है। और पिछले 6 वर्षों में आपने देखा होगा, इस देश में गरीबों के उत्थान के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया। मैं उन योजनाओं पे आज नहीं जा रहा, लेकिन किसान की बात कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान की बात हो, 6,000 हर किसान के खाते में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो। जो गरीब कभी अपनी इंश्योरेंस के बारे में नहीं सोचता था, 22 करोड़ से ज़्यादा गरीबों की इंश्योरेंस करवाने की बात हो। गरीब का बैंक खाता बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी नहीं खुलता था, उन बैंकों का उनका बैंक खाता भी खुला। और इस कोविड-19 की स्थिति में अगर सीधा खाते में पैसा किसी ने भेजा है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारदर्शिता के कारण भेजा। तो गरीब की हर समय चिंता किसी ने की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और कल भी जो आपकी चिंता का विषय था, और हम सब भी देखते हैं कि जो गरीब वापस भी जा रहा है उसकी मदद कैसे की जाए, तो आज हम आप सबके सामने आए हैं। कल एमएसएमई सेक्टर की मदद की तो 12 करोड़ लोगों को ये मध्यम लघु सूक्ष्म उद्योग रोजगार देते हैं। अगर उनकी मदद हुई तो अप्रत्यक्ष तौर पर गरीब मजदूर की मदद भी कल की गई। और कहीं ना कहीं जो इतना सकारात्मक वातावरण बना, लोगों के पॉजिटिव मैसेज आए कि ये अच्छा हुआ, इससे उद्योग को फायदा मिलेगा, छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा, तो इससे गरीब को भी बल मिलेगा। तो आज का जो हम करने जा रहे हैं, गरीब के लिए, प्रवासी मजदूर के लिए और 1-2 बिंदु किसानों के लिए, आज बाकी अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबके सामने आएगा। तो इसमें मुझे केवल इतना ही कहना है, और मोदी जी ने इसको 12 तारीख को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति में, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जो पहली घोषणा है, जो हमने अब तक कदम उठाए, वो लगभग 3 करोड़ किसानों के लिए जो कृषि ऋण है वो 4,22,000 करोड़ के वो अवेल कर चुके हैं। पिछले 3 महीनों में उसके लिए लोन मोरेटोरियम दिया गया है, ताकि उनको उसमें छूट दी गई है कि 3 महीने तक उनको वापस नहीं करना है। इंटरेस्ट सबवेंशन दी है, ब्याज पर सहायता दी है, त्वरित भुगतान यानी कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर इनको इंसेंटिव दिया है, क्रॉप लोन्स पर। और ये भी जो 1 मार्च से उनकी ड्यू थी उसको बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। Again, one more thing which I'd like to draw your attention before I go to today's announcements. और बात पर आपका ध्यान खींचना Liquidity चाहूंगी। support for farmers and for the rural economy has कृषि been क्षेत्र happening in the और last 2 months. गांव I'm की अर्थव्यवस्था referring के लिए only पिछले to 2 those महीनों में things हमने which have कदम उठाए happened in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us
and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, जब कोविड का हमला हुआ, banks have been happening. बैंकों के जरिए गतिविधियां चलती रही। That 63 lakh loans of 63 लाख लोन crores have दिए been गए। approved in agriculture area between 1st कृषि March क्षेत्र में ये and लोन 30th अप्रूव of किए गए April. और ये सब लॉकडाउन के Again, दौरान हुआ है। refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. सिर्फ मार्च के महीने में नाबार्ड के जरिए जो कोऑपरेटिव बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, उन्हें पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये लोन दिए जाए। ये ग्रामीण रूरल जो ग्रामीण बैंक है वहां पर ये पैसा उपलब्ध कराया गया। Also through a fund which is operated by the NABARD is the RIDF, which is the Rural Infrastructure Development Fund. RIDF वो फंड है जिसके जरिए नाबार्ड पैसा मुहैया करा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों को। 200 crores has been provided for rural infrastructure. सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड RIDF के जरिए दिया जा रहा है। And that's happened during the COVID period. और ये सब कुछ कोविड के दौरान हो रहा है, लॉकडाउन के दौरान हो रहा है। Do also get working capital assistance, and to the extent of 6,700 crores have been sanctioned for them to procure agricultural produce, which means they can take things from the farmer, they can provide things to the farmer, and when they procure agricultural produce, that money goes into the hands of the farmers themselves. And राज्यों को भी इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वो किसानों से अनाज खरीद सकते हैं। राज्यों की एजेंसियां इस पैसे के जरिए किसानों से सामान खरीद सकती हैं और फिर पूरी चेन आगे चलती है। कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। I spoke about the rural areas, rural poor, rural money reaching the hands of the farmers and so on. Now I just very quickly mention about urban poor. अब मैं शहरी गरीबों के बारे में बात करूंगी, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। Again, what activity has happened to reach out to the क्या गतिविधियां हुई हैं ताकि शहरी गरीब को राहत मिले। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इजाजत दी है कि वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस, आपदा के लिए जो रकम होती है उसका इस्तेमाल करके प्रवासी मजदूरों को खाना और रहने की जगह पानी दे सके। 11,000 करोड़ उस राशि में दिया गया है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में। इस रकम से ये शहरी गरीबों के लिए, ये राज्यों का अधिकार है कि वो उसको कैसे खर्च करें
लेकिन ये रकम दी गई है। Context when we talk about attending to the migrants. Again, there are ये पहल प्रवासी मजदूरों जो पलायन कर रहे हैं उन्हीं के लिए किया गया। For urban homeless category, that is something which normally is there, but in those shelter for urban homeless, 3 meals are provided entirely at the cost of the central government. So homeless who live in urban areas, particularly in the COVID situation, जो शहरी गरीब बेघर हैं उनके लिए पहले से शेल्टर होम में रहने का और उसको अपकीप करने के लिए, उसकी देखरेख के लिए सारी की सारी जो पूंजी है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। Food, taking care of them in the shelters, reaching cash to them, all this has been done, and therefore I'm enumerating. And did I do this some other time last year? No, I am showing you what has happened in the last 2 months. हम ये पिछले 2 महीनों की बात कर रहे हैं, ये कोई पुरानी बात नहीं हो रही है। ये पिछले 2 महीनों में जितने शेल्टर होम्स हैं वहां के लिए खाना दिया जा रहा है जो शहरी बेघर हैं। The other thing, you may recall when the Prime Minister addressed the nation, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था कि भारत कैसे अपने कैपेसिटी को अवसर में बदलकर पूरे विश्व के लिए काम कर सकता है। Give the stimulus, all of us will have to. और अगर हम स्टिमुलस देते हैं तो सबको मेहनत करनी होगी। 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरे देश में, और इसका जिक्र पीएम ने भी किया था। SHG groups have produced over 3 crore of masks. 3 करोड़ मास्क बनाए हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने और सैनिटाइजर भी बनाया है। ये सब कोविड-19 के पीरियड में पिछले 2 महीनों की बात है। और ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप शहरी गरीबों के जरिए उनका योगदान इसमें शामिल है। ये सब केंद्र सरकार के मदद से हो रहा है। To the SSGs, and these revolving funds for the self-help groups have also become on board a Paisa portal. It is called PA. एक पैसा पोर्टल बना है जो रिवॉल्विंग पैसे से आगे बढ़ने वाले, इधर उधर जाने वाले पैसे के जरिए वो भी इन SHGs यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ही आगे बढ़ रहा है। Which had happened in Gujarat want their people also to get onto this, and through this a lot of across the state benefits which they can get will be available for the SHGs. And lastly, for the urban poor, 7,200 new SHG groups, 7,200 नए SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप नए बनाए गए हैं, and that commenced from 15th March. वो भी 15 मार्च से शुरू हुआ है। Critical COVID time. New self-help groups, नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं, get given, and they get benefit from revolving funds and so on to catch on with what they want to do for their livelihoods. वो इस रिवॉल्विंग फंड यानी लगातार घूमने वाले पैसे का COVID period, इस कॉर्पस के जरिए उनको मदद मिल रही है। और ये सारी गतिविधियां शहरी गरीबों के लिए हो रहा है जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका और हस्तक्षेप है। प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब, ये चर्चा का विषय पिछले कुछ दिनों में भी रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में भी इनके लिए किया, और इस समय में तो विशेष तौर पर हम लोगों ने आपदा राहत के माध्यम से जो फंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के माध्यम से उपलब्ध उनको हमने राज्यों को करवाया। ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, ताकि इन लोगों को इसमें से राहत दी जा सके, आपदा राहत हो सके, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और यही नहीं, हाइजीन का ख्याल रखते हुए 3 मील्स एक दिन में प्रति व्यक्ति के लिए इन शेल्टर होम्स में उपलब्ध करवाई गई, ऐसा प्रावधान वहां पर करवाया गया। और जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कहते हैं, ऐसे 12,000 स्वयं सहायता समूह ने 3 करोड़ मास्क और 1,20,000 लीटर सैनिटाइजर्स का उत्पादन किया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इस संकट की घड़ी में हमारे काम और ये बड़ा काम देश के लिए स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनों ने किया है। यही नहीं, 7200 नए स्वयं सहायता समूह इस समय में बनकर और शुरू हैं पिछले 2 महीनों में। और जो रिवॉल्विंग फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए पैसा एक
पोर्टल के माध्यम से हमने शुरू किया था गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट, अब उसको पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में शुरू किया जाएगा ताकि इनको और लाभ मिल सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब हमने घोषणा की थी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए उसकी लिमिट कर दी थी, तो इससे भी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद मिलेगी। There's definitely a lot of concern, a legitimate concern about काफी migrant चिंता है workers. और बहुत चिंता now लाजमी भी going है back to जो their प्रवासी respective मजदूर states, पलायन कर रहे हैं and will अपने they राज्यों को be वापस there लौट रहे हैं उनको without लेकर, any opportunities और कहाँ to वो earn वहाँ their पर livelihood? पहुंचकर भी कोई अवसर So, I would like उनकी to draw your जिंदगी के attention to लिए say रहेगा या नहीं। that you know that we had announced the increase in the average wage rate from मैंने 182 to 200 पहले ही ऐलान किया है I made an announcement once earlier. कि Now, एवरेज जो the तनख्वाह question है, of these people एवरेज returning to वेज their रेट है, states, will उसे they बढ़ा stay के 202 without रुपए any किया गया है। provisioning? We have already generated 14.62 crore man days or person days of work generated up to 13th May, which is actually 14.62 करोड़ 40 to 50% वर्क आवर्स यानी more persons काम के who have घंटे got enrolled compared to last May. पहले So बनाए when गए there हैं was जो no कि COVID, पहले से ज्यादा what was the number? पिछले मई के It is at least तुलना 30 में to 40% ये ज्यादा sorry, बढ़ोतरी की 40 गई है to 50% ताकि ऐसे more अवसर than ज्यादा what it was before. ऐसे मजदूरों We को have मिले। enrolled all of them. We are making provision through the Rural Development Ministry to ensure that they get enrolled. रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के लिए जरिए हम मजदूरों के एनरोलमेंट, उनके पैसे, उनकी तनख्वाह, उनका काम, उनके काम के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। I think the data is of yesterday, in about 1.87 lakh gram panchayats. So the migrant workers who are going back, जो and if प्रवासी in case मजदूर they're joining लौट the रहे मनरेगा हैं, there, वो are मनरेगा के being जरिए actively enrolled and provision through the काम में उन्हें respective ministries एनरोल being किया done, जा रहा है and they are being विभिन्न taken मंत्रालयों to के जरिए, ensure that they're going और to be फिर entertained even उन्हें there. They're not going to be sitting for वहां working of अपने some राज्य में भी basic लौटने work. के बाद उन्हें States and union territories सामान्य have been advised to provide work काम to ही these सही लेकिन migrant दिया जा रहा है। workers as per the provisions of this जितने भी Manrega Act. प्रावधान है मनरेगा एक्ट के तहत, we are उनके जरिए continuing उन्हें to उन्हीं के राज्य में monitor, काम दिया जा and रहा the है, हम work उसे during मॉनिटर the कर रहे monsoon हैं। will also be actively taken up, whether for plantation, whether for horticulture, whether for livestock related sheds, related building, वगैरह. So on all of them, these workers who go from here are going जो to भी be मजदूर actively अपने engaged. राज्य में लौट So I रहे just हैं want that उनको to be made काम sure. वहां पर मिलेगा, The इसका annual प्रावधान actual किया गया है। expenditure till date is around 10,000 crore. Now, even if it's more, we are making provision. इसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और आगे भी अगर जरूरत हुई तो और भी खर्च किया जाएगा। वापस अपने राज्यों में गए हैं, उनकी भी मदद एमजी नरेगा के माध्यम से कैसे की जाए, उसके लिए भी हम योजना लेकर आए हैं। और अब तक 14 करोड़ 62 लाख पर्सन डेज जनरेट किए जा चुके हैं 13 मई तक, और इस पे कुल खर्चा लगभग 10,000 करोड़ के लगभग किया जा चुका है। जो काम ऑफर किया गया है वो 2.33 करोड़ जो काम मांगने वाले हैं उनको कल तक किया गया, और ये लगभग 1,87,000 ग्राम पंचायतों में किया गया है। इसमें 40 से 50% लोगों ने अपनी एनरोलमेंट की है, रजिस्ट्रेशन की है। पिछले साल के मई महीने के मुकाबले ज़्यादा लोगों ने की है। यानी कि अगर पिछले साल 100 ने की थी तो इस बार 140 से 150 लोगों ने की है। उस तरह से उसका आंकड़ा लगभग बड़ा है। और एक विशेष मुहिम पूरे जिलों में देश भर में चलाई जा रही है कि ये जो वापस यहाँ से हमारे प्रवासी मजदूर गए, अगर वो चाहें तो वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर कराकर काम ले सकते हैं, और इसके लिए राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को निर्देश दे दिए गए हैं। और यही नहीं, 182 रुपया जो उनकी दिहाड़ी होती थी अब उसको बढ़ाकर भी 202 रुपये कर दिया गया है। Again, before I go over to specifying what programs we have for the second tranche, one quick look at some major reform steps which are in the pipeline.
पाइपलाइन में है, बड़े कदम, बड़े रिफॉर्म पाइपलाइन में है, उसके बारे में जल्दी से मैं बताना चाहती हूँ। Some reports are also with the standing कुछ committee. संसद में है, कुछ We are स्टैंडिंग committed कमेटी to के पास making है it better और हम for the workers and the workers' welfare. ये संकल्प is लेते हैं कि top on our मजदूर और agenda. मजदूरों के I very well quickly run बेहतरी through के लिए some of ये the सभी points. कदम हम All this हर is going हाल to be में shared with उठाएंगे। you in any case. But quickly ये I will पॉइंट्स आपको highlight दिए the जाएंगे, fact लेकिन मैं जल्दी से that the एक-एक minimum करके गिना wages at देती the हूँ। moment is Minimum applicable only to wages 30% of all the workers. We want to make it universal. We Minimum want to wages give को that हम right to minimum wage यूनिवर्सल universally to प्रावधान all में बताएंगे, workers. So that is one जितने of the भी major मजदूर हैं thing उन we are सबको उसका working फायदा towards. मिलेगा। And as you know, it's all discussed in the parliament. It is getting work is done in the parliament. It is happening there. But I'm संसद giving में you भी some काम of हो the रहा है, highlights. लेकिन जो हाइलाइट्स Second है is वो हम बता देना also the चाहते हैं आपको। regional disparity in minimum wage. जो which क्षेत्रीय exists. We are trying to असमानताएं get हैं, over that problem, to get over the disparity which prevails by saying if there can be उनके a भत्ते में, national मजदूरों के floor भत्ते wage में concept which can be accepted by all the उसको states, दूर करना so है that ताकि सभी राज्य the मंजूर करें disparity और which हम prevails between जो states of minimum wages can be असमानताएं gotten over. हैं अलग-अलग We are राज्यों also में talking about मजदूरों के compulsorily दिहाड़ी giving में उसको ठीक appointment करें, letters for उसको बराबर everybody who's taken in, so that it gets formal, and also making sure annual health checkup is made mandatory for all the employees. सालाना हेल्थ चेकअप भी Benefits also for सबके लिए workers बाध्य in किया जाएगा, सभी the मजदूरों के लिए। interstate migration of workers, so स्वास्थ्य that चेकअप, nowadays we come to know that workers don't get recruited through an agency or a group, which are normally the groups which bring in unskilled workers. Now employers are directly taking them on, and therefore अब for किसी that एजेंसी के also, जरिए मजदूर coming अपना from काम various नहीं करते हैं, वो destinations, we want to सीधा have a definition अपना of काम interstate पा migrant रहे हैं। workers. Again, on migrant workers, this will help in defining them better and reaching out benefits to them better. ये सारे All this कदम is in से the parliament. फायदा I'm not saying पहुंचेगा it as इन a पलायन part of करने this वाले package, मजदूरों को, but I'm प्रवासी only मजदूरों giving को। you a clear picture that we are ये सब कुछ पर committed संसद में towards काम हो रहा है, लेकिन मैं improving the इसके lot जरिए of आपको the ये workers समझाना चाहती हूँ and कि हम making इस sure that migrant workers के and लिए other workers प्रतिबद्ध are हैं कि हर treated हाल में a ये lot कदम जो more with मजदूरों के लिए their, उठाना है formal उसे benefits हम reaching them. Portability of करेंगे welfare और उनको benefits फायदा is पहुंचेगा। also being contemplated in the parliament for migrant workers. Again, looking at pan-India to all districts, we want to extend पूरे the भारत ESIC में benefits जितने to जिले हैं, all establishments which employ at least 10 people or जहां भी more. And किसी संस्था in में some of 10 the या ज्यादा notified लोग हैं, districts. उन सभी जगहों Looking पर at ये फायदे also, पहुंचाए जाएंगे। employees establishment which have less than 10 employees, जिन संस्थाओं में we 10 से want कम to लोग at हैं, least काम on कर a रहे हैं, voluntary basis make वहां हम sure कम से कम ESIC can be extended to them on a वॉलंटरी voluntary basis because they're very तरीके small. से We ही don't want to burden them with anything. ECI के जो फायदे The हैं वो other उनको thing that we are looking at पहुंचाना is चाहते हैं। to make it mandatory to have ESIC coverage through notification by the central government for employees who are working in hazardous industries. जहां भी Because even if they are small and they don't get included through a central hazardous यानी notification, खतरे we वाली want to जगहों make पर sure काम कर रहे हैं, ESIC वहां पर coverage is given to all ESIC those coverage who are working in बाध्य smaller किया जाएगा, units, mandatory but which किया are जाएगा। engaging in hazardous activities, they get the benefit of ESIC coverage. And social security schemes are being extended even to gig workers and platform सामाजिक workers. सुरक्षा That के is जितने now urban, स्कीम हैं, phenomena, वो भी and they should get that coverage. So we want to bring हर gig जगह workers into it. धीरे-धीरे We're also कवर looking किया at जाएगा। reskilling of retrenched workers. Now in the context of COVID, this was all designed before. अब ये But in the context पहले of से COVID, तय we था, लेकिन probably अब will have a कोविड के situation बाद where a lot ऐसी of परिस्थिति है, retrenched workers बहुत will सारे need ऐसे to मजदूर have हैं जो काम skill reskilling exercise. And again, अब उनके all पास नहीं बचा है, occupations उन्हें नए सिरे से should नए be स्किल open दिए जाएंगे, for रीस्किलिंग की women जाएगी। with night working rights, and also there making sure safeguards are provided for all of them. Provision also for social security funds for unorganized workers. सामाजिक सुरक्षा and gratuity अनऑर्गेनाइज्ड to be सेक्टर given में भी for दिया जाएगा। fixed term employment. So these are some of the things which are our commitment, which is revealed in the labor codes. 44 labor इन श्रम different कानूनों acts के have all बदलाव been के now जरिए compressed हम with सबको इकट्ठा करके extensive discussions and बहुत ज्यादा consultation. बातचीत I must और appreciate the Ministry लोगों of से Labour, जानकारी लेकर the Minister, मिनिस्ट्री Senior ऑफ Minister लेबर, Gangwar ji, श्रम मंत्रालय together ने with the Secretary, और उनके have सहयोग engaged से with all straight मिलकर up, अलग अलग all जो stakeholders, समुदाय के लोग all हैं, जितने straight स्टेक up होल्डर्स हैं पूरी बहस to में, उन make सब sure से that their जानकारी ली concerns है are addressed, और and कोशिश की है therefore कि the हर किसी की possibility of चिंता having those 44 laws पर being काम हो reduced to 4 codes
highlights I've given you are waiting in the parliament. Our commitment lies in having them passed after और हम discussing इसे in all संसद the से पास कराएंगे, हमारा इसके लिए कमिटमेंट है, हम प्रतिबद्ध हैं। लेबर कोड के माध्यम से हम लोग जहां मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो देश में जो न्यूनतम वेतन है वो लगभग 30% वर्कर्स ही उसका लाभ उठा पाते हैं। समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं हो पाता। अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है उसमें ये दिक्कत है, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की जो बात कही गई है कि न्यूनतम वेतन की यूनिवर्सलाइजेशन की जाएगी, पूरे देश भर में एक जैसा उसका हो, कम से कम एक न्यूनतम वेतन गरीब से गरीब मजदूर को मिले, इसके लिए इस कदम को उठाया गया है। और जो क्षेत्रीय असमानता है, जो रीजनल डिस्पैरिटी है न्यूनतम वेतन में, उसको भी इसके माध्यम से दूर किया जाएगा, वैधानिक रूप इसको दिया जाएगा और नेशनल फ्लोर वेज इसमें इंट्रोड्यूस की जाएगी। यही नहीं, जो इसको तय करने के तरीके हैं मिनिमम वेजेस, उसको और सरलीकरण इसका किया जाएगा ताकि इसमें कंप्लायंस ज़्यादा हो और रुकावटें कम हो। नियुक्ति पत्र भी सभी मजदूरों को मिलेंगे, और यही नहीं, साल में एक बार स्वास्थ्य का चेकअप भी होगा, हेल्थ चेकअप भी इनका होगा। और जो खतरनाक क्षेत्र में काम करने वाले, जहां खतरा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले जिनके काम करते हैं मजदूर, उनके लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड भी लाया जाएगा जो उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। यही नहीं, पोर्टेबिलिटी जो है वेलफेयर बेनिफिट्स की, ये भी सभी प्रवासी मजदूरों को मिलेगी। और ईएसआईसी का लाभ भी, इसका भी पैन इंडिया पूरे देश भर में इसकी कवरेज सभी जिलों में हमारे मजदूरों को मिल पाएगी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट जो संस्थान है वो 10 से ज़्यादा वाला है या उतने तक का है। और इसके अलावा मैंडेटरी ईएसआईसी कवरेज भी नोटिफिकेशन से माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी एम्प्लॉयज़ को जो ऐसे खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले उनके लिए होगी। सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिग वर्कर्स के लिए और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए मिलेगी। रीस्किलिंग करनी बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो लोग वापस गए हैं काम करने के लिए, उनको वापस उनको स्किल प्रदान करके वहाँ पर उनका कैसे लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जाएंगे। और सोशल सिक्योरिटी फंड का भी असंगठित क्षेत्र के लिए प्रावधान करने का हम प्रयास करेंगे, प्रोविजन किया जाएगा। और जो महिलाओं के लिए कामकाज के क्षेत्र खुले हैं, उसमें रात्रि के समय अगर काम करना पड़ता है, ड्यूटी करनी पड़ती है, तो उसमें सेफगार्ड्स अलग अलग तरह के लाए जाएंगे। Quickly of yesterday's, you know, we've spoken about 3 lakh crore emergency working capital facility. We've also spoken about no global tenders for 200 टेंडर्स की बात की थी कि 200 करोड़ तक के जो small टेंडर्स companies हैं also to वो bid ग्लोबल for टेंडर those नहीं माने and so जाएंगे। on. So yesterday's announcement, I thought I'll very quickly give you. I बीते will दिन be का ऐलान। providing this one slide. I'm spending not very much of a time on that. I'll move over to talking about one thing there. If you can please go back to the previous slide. One thing there on the tax deduction at source and tax collected at source, where we reduce the collection at source और rate tax by deduction at source 25%. I will, after the presentation, में जो हम have कमी कर रहे Revenue हैं, Secretary उस give पर you a clear explanation इस briefing के of बाद who it Revenue includes Secretary and who आपको it उस पर doesn't. So the TDS and TCS डिटेल्स explanation, बताएंगी कि कौन you have टीसीएस the और Finance Secretary टीडीएस next के to me इस who's also the कटौती से Revenue Secretary फायदा will be able to पहुंच पाएगा किन explain किन को it. और किससे But otherwise that slide will be given to you. So instead of going too much into detail, I just want to highlight the fact the EPF support of paying 24%, the 12% of employer, 12% of the employee EPF का जो is support है borne by 24% the government of India. 12% 24% employee is का, being 12% borne employer by the का। government of India for the past 3 months, and we have extended that for the सरकार next 3 months also. June, July, आगे August is 3 also महीने getting भी added. ये This is something which I did mention yesterday. हिस्सेदारी देती रहेगी। And पिछले similarly 3 महीने और for आगे के others, 3 महीने भी, it जैसा has मैंने बीते been दिन बताया। reduced from 12 to 10%.
और जो for the employer एम्प्लॉयर and the का employee. कंट्रीब्यूशन है और However, the एम्प्लॉय का employee will get the उसे 10% for घटा the private, for the 10% कर government-related दिया public गया है। sector undertakings, where the government pays the 12+12. सरकार 12+12% पिछले कल जो PSUs में सूक्ष्म देगा। लघु और मध्यम उद्योग के लिए घोषणा की गई थी, उसका बड़ा कारण ये भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 तारीख के भाषण में कहा भी था कि हमारे लघु मंझोले उद्योग जो हैं, ये जो हमारे MSME हैं, ये करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। और इसीलिए पिछले कल लाखों करोड़ रुपए का जो बेनिफिट दिए गए, मैं कहूँगा सहयोग दिया गया। इन लोगों ने कभी मदद नहीं मांगी, सहयोग मांगा, और सहयोग देने का काम कल भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है MSME सेक्टर के लिए। और उसमें ही एक बड़ा सहयोग था, मार्च अप्रैल मई महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12% एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का हिस्सा भारत सरकार दे रही है, और अब इसको अगले 3 महीने जून जुलाई अगस्त तक और बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो 12% दोनों को देना पड़ता था काम देने वाले को, अब उसको 10% कर दिया गया है। लेकिन जो भारत सरकार के सेंट्रल PSCs हैं, वो अपना 12% ही देंगे। I go over to today's announcements. फिर I मैं said वापस there are आज के ऐलान पर आ रही हूँ। three steps that we want to explain about the migrants. 3 कदम The हम first प्रवासी thing मजदूरों relates के लिए to उठा रहे हैं, free food grain. कैसे उन्हें मुफ्त का Free अनाज food मिले। grain supply to all migrants मुफ्त for the अनाज next 2 सभी months. मजदूरों को How is this? 2 महीने तक We मिलेगा। had already, कैसे? you are aware, we had already announced हमने that पहले for ही the घोषणा की थी public distribution system-based, card-based people who get their regular quota of rice जो or wheat and कार्ड होल्डर हैं वो in गेहूं their और residences, we had added free चावल उन्हें पहले ही मिलता है। 5 kgs for them, either of rice or wheat, and also said 5 kgs per individual, but per card 1 kg of pulse was announced earlier. ये And सब that पहले के additional ऐलान। 5 per month kg of wheat or rice was being given free. That was made clear. Now what we are saying is that continues, that remains intact. जो पहले के ऐलान But है वो for वैसे ही those चलते who are रहेंगे। non-card holders, लेकिन जो meaning ऐसे they are लोग हैं, neither ऐसे under मजदूर the हैं National Food जो Security Act, नेशनल फूड nor सिक्योरिटी are एक्ट they के तहत holders नहीं of है, any state level ना ही cards, किसी राज्य for के them, कार्ड उनके they पास shall है। be given नॉन 5 कार्ड kgs होल्डर्स per उन्हें person 5 किलो दिया of wheat or जाएगा, rice, or 1 kg चावल या of chana, गेहूं, 1 so किलो that चना। that is for per family. ये And हर if the person household, is हर remaining family के without लिए। card, he can also get it. We are जिसके पास कार्ड engaging with नहीं the भी है state governments to उसे make भी ये sure प्रावधान that they know where these दिया migrants जाएगा। are. They can हम approach राज्यों को ये them देंगे and give them, क्योंकि because राज्यों को most of पता है these कि ये migrants who मजदूर have कहाँ पर no हैं cards are staying और in those camps which are being run either by the government or by the NGOs, and therefore सरकार based या on a एनजीओ rough की तरफ से चल रहे इन assessment शेल्टर which has होम्स been में ये given to मजदूर us जहाँ भी by हैं all the state बिना कार्ड governments, वाले भी इन we मजदूरों think को ये there are अनाज about 8 मिलेगा। crore migrants 8 करोड़ for whom benefit will पलायन reach करने वाले through मजदूर this हैं। free food grain supply. ये The central मुफ्त government will अनाज take the cost सप्लाई and they will का not be पूरा charged. भार केंद्र सरकार 3,500 उठाएगी। crores will be spent on this intervention within the next 2 months. अगले 2 महीने में So I इस पर know migrants are also moving out, either they're खर्च going होगा। back, very few are coming back. कई सारे ऐसे Irrespective, मजदूर हैं जो we are वापस saying अपने for the घर next जा 2 रहे हैं, months, कुछ ऐसे they हैं जो shall वापस get काम की free जगह पर आ रहे rice or हैं। gra- इन सबको wheat and मुफ्त also 1 गेहूं kg या मुफ्त per चावल card और per 1 family. किलो मुफ्त Without दाल card also you can बिना get कार्ड के भी your उन्हें rice, wheat अब or मिलेगा। rice or wheat or chana. So this will reach through the state governments. ये State राज्यों के governments जरिए will किया be जाएगा। implementing agencies. राज्य सरकारों को They will identify इसे the इम्प्लीमेंट migrants. करना है, They उन्हें will take इम्प्लीमेंट care of करना the है। food इम्प्लीमेंटिंग distribution एजेंसी इसमें and राज्य they होगी will provide the जो इसे details. कारगर करेगी Initial और assessment उन्हीं के is what पास I ये told जानकारी you. है कि ये The मजदूर numbers may कहाँ पर हैं। change depending on how the state governments are going to. We made provision for this many. That's exactly what I want to हमने convey. इतने मजदूरों के लिए अभी प्रावधान किया है। अब ये प्रवासी राज्यों पर मजदूर निर्भर जो करेगा। भारत और मैं कहूँगा राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, उनके लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है,
जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। The next point is, I go back to referring to the Prime Minister's address to the nation, where he said 5 pillars, and one of them प्रधानमंत्री is ने talking 5 about स्तंभों की technology-driven बात की थी और कहा था कि कैसे तकनीक के जरिए व्यवस्था को आगे हम ले जा सकते हैं। उसी का ये उदाहरण है और इसी के जरिए जो पलायन करने वाले मजदूर हैं उनके जरिए हम नेशनल पोर्टेबिलिटी कार्ड बना रहे हैं। किसी भी राशन की दुकान से जहां भी आप गुजर रहे हैं वहां से ये राशन कार्ड होल्डर, बिहार और कर्नाटका, कोई भी राशन कार्ड होल्डर, अगर आज वो बिहार में है, परसों वो राजस्थान में है, कहीं भी है, वो पैसे का राशन, ये जो खाने का राशन है किसी भी राशन दुकान से ले सकता है। नेशनल One nation, one ration card will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, one nation, one ration card, 67 crore beneficiaries in 23 states, 23 which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% का जो पूरा PDS जनसंख्या है उन सबको इसका फायदा मिलेगा। पूरे देश में एक ही राशन कार्ड चलेगा, चाहे वो मजदूर किसी भी राज्य में हो। एक देश एक राशन कार्ड। Of national portability of these cards by March 2021. नेशनल पोर्टेबिलिटी, राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी चलेगा, किसी भी राज्य में वो कार्ड मान्य होगा। And union territories will complete full FPS automation by March 2021. आज के समय में अगर देखा जाए तो जो प्रवासी मजदूर था उसको सबसे बड़ा संकट आया, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आने वाले समय में उनको कभी भगवान ना करे कोविड-19 जैसी स्थिति ना आए, लेकिन अगर कुछ भी होता है, स्थिति ना भी आए, वैसे भी चले, तब भी वो देश के किसी कोने में हो, वो कहीं पर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना हम लाने वाले हैं और इसके माध्यम से आप देश के किसी कोने में भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं, जिसको हम डिपो भी कहते हैं, राशन डिपो भी कहते हैं, ताकि राशन वितरण प्रणाली से जो आपके हिस्से का आप उसको ले पाएं। और इसका अगर देखा जाए तो आज तक टेक्नोलॉजी के उपयोग से, चाहे वो जनधन खाते हो, आधार नंबर हो, मोबाइल हो, इसके माध्यम से पारदर्शिता मोदी सरकार लेकर आई और लाखों करोड़ पिछले कुछ वर्षों में बचाया भी है और वापस गरीबों के उत्थान के लिए लगाया। तो इससे भी जहां गरीब को लाभ मिलेगा देश के किसी कोने में राशन लेने के लिए, वहीं पर देखा जाए तो 23 राज्यों में 67 करोड़ बेनिफिशियरी जो हैं वो 83% पीडीएस की पॉपुलेशन वो अब तक इस पे कवर हो चुकी है और मार्च 2021 तक हम 100% उसको कवर कर लेंगे नेशनल पोर्टेबिलिटी में, ताकि वो देश के किसी कोने में जाकर भी अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम गरीब मजदूर, प्रवासी मजदूर के लिए होगा कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपने हक का राशन किसी भी राशन डिपो से ले सकता है, ऐसा उसके लिए सुविधा होगी। The last step for the migrant workers, आखिरी कदम प्रवासी पलायन करने वाले मजदूरों के लिए। Now I'm talking about नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड के बाद for the migrant workers or the रहने की urban जगह poor. के लिए जो शहरी गरीब हैं उनके लिए ये plans to कदम launch and very quickly it shall launch शुरू under the करने वाले हैं, PM लॉन्च Awas करने वाले Yojana हैं। for the migrant labor and urban poor. पीएम A आवास योजना particular माइग्रेंट scheme लेबर of के लिए और affordable शहरी rental गरीब के लिए housing. रेंटल Rental हाउसिंग scheme स्कीम whereby शुरू की we जाएगी। have 3 different ways in which we want to achieve it. 3 अलग अलग We are तरीकों से asking, इसे किया जाएगा। incentivizing manufacturing units
industries, institutions and उद्योग है, associations मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, on उन्हें their private land build and इंसेंटिवाइज develop कर रहे हैं कि affordable वो rental housing अपनी complexes. जगह पर रेंटल And we're हाउसिंग also कॉम्प्लेक्स बनाएं। converting a lot of government funded housings in सरकारी फंड major से cities which are remaining मुख्य शहरों में into affordable rental housing accommodation. They can become affordable rental housing रेंटिंग complexes. हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस And this बनाए shall जाएंगे be done सरकार on a द्वारा। PPP mode पीपीपी through मोड में से किया जाएगा, concessionaire agreements through which they can invest somewhat some money to keep it up and also somewhat some money to make it ready and then derive the rental like the way the roads have, you know, the toll little collections. Similarly here they can collect small amount of rent and make some arrangement. Incentivizing also state governments to do the same. Central government organizations will also undertake in similar lines. The detailed guidelines will come from the ministry sooner. इस पर So गाइडलाइंस migrants, मंत्रालय की तरफ से urban जल्दी poor दिया जाएगा, now जिसमें can look शहरी forward to गरीब having at least some और basic मजदूरों के लिए rental accommodation for themselves. मूल जो रेंटिंग प्रवासी अकोमोडेशन है, मजदूर घर और है, शहरी ये उन्हें गरीब के मुहैया लिए कराया जाएगा। जहां वो काम करते हैं शहरों में, वहां पर कम कीमत पर उनको किराए पर मकान मिल पाए, रहने की सुविधा मिल पाए। इस बड़ी योजना का संकल्प लेकर मोदी जी आए हैं और मेरा मानना है कि जिस तरह से हर घर को बिजली, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर व्यक्ति का बैंक खाता खोलने का काम, हर बहन को गैस सिलेंडर देने का काम और 2022 तक हर गरीब को सर ढकने के लिए छत देने का काम मोदी सरकार करने वाली है, उसी तरह से एक बहुत बड़ी योजना ये भी है कि कम कीमत वाले कम किराए वाले ऐसे घर आने वाले समय में मिलेंगे और जिसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस योजना को लाया जाएगा, जो कि हमारे अब के बने हुए घरों को भी उसमें इंक्लूड कर सकती है, जो सरकार के अभी बने और कुछ जगह खाली होंगे। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उनको भी इंसेंटिवाइज करके करेंगे ताकि वो भी अपने काम करने वाली मजदूरों के लिए अपनी फैक्ट्री या उसके आसपास रहने की व्यवस्था बनाएं, या राज्य की सरकारों को, उनकी एजेंसियों को हम लोग प्रेरित करेंगे, लाभ देंगे ताकि वो भी अपने राज्य में काम करने वाले ऐसे मजदूरों के लिए सुविधाएं तैयार करके दें। I move over to the Sishu loans of Mudra. This is a way in which we are going to help the smallest of small credit takers from the banks, where after the RBI giving 3 months moratorium, when they come back to have to pay the interest, the EMI, they will have a little problem and we want to support them with some interest subvention. Incentive being, if you pay in time promptly, you get the 2% incentive, interest subvention incentive. So the current portfolio of Mudra Sishu loans, you know Mudra has 3 different types of loans. The Sishu is up to 50,000 जो कि 50,000 तक का है, 50,000 rupees or सिर्फ less. 50,000 रुपए ही शिशु मुद्रा लोन में है। Taken loans 50,000 or lesser, जो उससे कम लेते हैं या 50,000 तक के लोन लेते हैं, 3 महीने के मोरेटोरियम के बाद जब वो EMI देने के लिए आते हैं तो अगले 12 महीने तक उनको इंटरेस्ट सबवेंशन का एक सहायता दी जाएगी। And that support will entail a total relief of 1,500 crores, which is for all the 1,500 करोड़ loan holders. का पैसा इसमें Now, जाएगा। I just want to give you a broad indication of number. I don't think it's possible for me to straight away tell you the exact number, but I can indicate to you because up to 50,000 will mean some people will have 10,000, some might have 15,000, some others might have 20. लेकिन So actually, to एस्टिमेट get the बता रही actual हूँ number क्योंकि of 50,000 से नीचे वाले जो लोग हैं, किसी के पास 10,000 लोन लिया हो, 15,000 लिया हो, लेकिन रफली outstanding is 1,62,000 crores. 1.62 लाख करोड़ अभी outstanding of Sishu loans शिशु लोन्स का आउटस्टैंडिंग मुद्रा कैटेगरी में 1.62 lakh crores पैसा है। and on the assumption that all of them have taken 50,000, the maximum limit, it will be something like 3 crore, more than 3 crore people, and therefore if this 3 crore is a conservative estimate, it can be slightly more than that. It will benefit, this 2% interest subvention will benefit about 3 crore
people who are beneficiaries of the Mudra Sishu loan. I'm not talking of all the three categories, only the Sishu category, which means interest subvention सिर्फ शिशु मुद्रा लोन के लिए 50,000 तक के लोन के लिए। शिशु ऋण श्रेणी में लोग आते हैं, उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की जो ब्याज में राहत देने की योजना मोदी सरकार लाई है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। 1,62,000 करोड़ रुपया आज तक इस मुद्रा शिशु लोन के अंतर्गत दिया है जो आउटस्टैंडिंग है, और इस योजना के माध्यम से लगभग 3 करोड़ ऐसे लोगों को लाभ मिलने वाला है, और ये कुल लाभ 1500 करोड़ रुपए के लगभग होगा। जो देश भर में मुद्रा शिशु लोन वाले हैं उनको 1500 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मोदी सरकार देगी कि उनके ब्याज में 2% की राहत छूट नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहन करेगी, यानी कि मोदी सरकार उसका खर्चा उठाएगी और गरीब को राहत देगी। The next step is towards street vendors, for whom we are giving a special credit facility for about 5,000 crores of rupees. This is going to be because most of their livelihood has been adversely affected. Street vendors have not been allowed to do anything during the lockdown, and therefore within a month the government will launch the special scheme which will facilitate easy access to credit for all the street vendors. And when I say all the street vendors, there are 50 lakh street vendors as per one estimation which comes from all the state governments. 50 lakh street vendors will be able to avail of the 5,000 crore special credit facility, through which once the lockdown is lifted, they can start their business back, they can buy their products to sell, and so on. So 50 lakh street vendors will be taken care of. We are giving an initial working capital of up to 10,000 rupees. And for this, we expect a liquidity provision of 5,000 crores will be made by the government. तो जहां एक और श्रमिक और प्रवासी मजदूरों के साथ साथ रेडी लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, इन सबको कोविड-19 के समय इस पिछले 2 महीनों में बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ा, और इन्होंने बहुत ज़्यादा त्याग भी इसके लिए किया है। और ये 5,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा केवल इनके लिए, रेहड़ी ठेला लगाने वाले, पटरी पर सामान बेचने वाले श्रमिक साथी, इनके लिए लेकर आए हैं। ये 10,000 की इनको प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है, क्योंकि किसी को चाय बेचनी है, सब्जी बेचनी है, कुछ और बेचना है, तो 2,000 10,000 तक वो अपना सामान लेने की उसको सुविधा मिल सकती है। और ये 1 महीने के अंदर सरकार इसको लॉन्च कर देगी। और जो मोबाइल से पेमेंट करेगा, डिजिटल पेमेंट करेगा, उसको इसके ऊपर इनाम भी मिलेंगे। और यही नहीं, डिजिटल पेमेंट्स का एक लाभ उनको और मिलेगा कि उनको आने वाले समय में 10,000 की बजाय ज़्यादा पैसा मिल सके, क्योंकि उनका व्यापार लेखा जोखा ध्यान में आएगा तो बैंक भी उनको ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो डिजिटल पेमेंट को भी इससे बल मिलेगा, और लोगों को भी आने वाले समय में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकता है अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। जैसे कल हमने एमएसएमई की केवल डेफिनेशन चेंज की, लेकिन उसका इतना बड़ा इंपैक्ट है कि लोग अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। यहां पर भी डिजिटल पेमेंट से इतना बड़ा बल मिल सकता है कि लोगों को आने वाले समय में कर्ज ज्यादा मिल सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं। ऐसे लगभग 50 लाख सड़कों पर, रेडी पर, फड़ी पर काम करने वाले, ठेले पर बेचने वाले लोगों को, घरों में काम करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। और 5,000 करोड़ रुपए की सुविधा केवल ये श्रमिक, हमारे पटरी पर काम करने वाले ठेले और रेडी वालों के लिए किसी ने की है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें दी है। I move to the next, which is generation of, we've gone to the housing. ये कर दिया। There is a program, that's fine. We wish to give the middle income group
and that too the lowest strata of the middle income group, who get only 6 lakhs to 18 lakhs annual income. So they are probably above poverty line, all right, and slightly over that, but clearly the middle class, the lowest rung of middle class, who are up to 6 to 18 lakhs only annual income. For them, there is a credit-linked subsidy scheme which was introduced by Government of India in May 2017. This was operationalized from 17, but it was extended only up to 31st March 2020.